کوئی وہ منصب کوئی نام ہو، دنیا میں آتا ہے رمضان جس دم، ملتی خوشی سب کو رمضان اور ہم، رمضان اور ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پروگرام لے کر آ گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے رمضان اور ہم، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک سے متعلق بات چیت کریں گے، اور دیکھیں گے آج ہم سے کون لوگ ملتے ہیں، کن لوگوں کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ دلچسپ سوالات آج بھی لے کر آنا ہے، آپ نے لینا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی وہ منصب کوئی نام۔ رمضان کا ادب و احترام ہمیں کس طرح کرنا ہے؟ خضو کے ساتھ زبردست زبردست۔ کرنا ہے، جو کچھ بھی ہو سکے۔ بعض لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، یا روزے رکھ رہے ہیں تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تراویح بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، کلام پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ رمضان شریف کس طریقے سے گزاریں؟ پہلے کے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے عبادتوں کی، اور یہ ساری چیزیں ہم دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ہمیں رمضان کا احترام کرنا چاہیے اور عبادت کے اندر مشغول ہو جانا چاہیے۔ زبردست زبردست زبردست۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں رمضان کی تیاری اس طرح کرنی چاہیے کہ خوب عبادت میں، زبردست اور زبردست۔ ساری چیزیں ہم عبادت کی طرف ہمیں زور دینا چاہیے کہ بھائی ہم نے اس کو کھانا پینا سمجھ لیا کہ افطاری کرنی ہے، سحری کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ پہ بوجھ کر لیا کہ نہیں یار افطاری ہے، افطاری ہوگی، سحری ہوگی، پھر سحری کے بعد ہمیں افطاری کرنی ہے، اتنا لمبا روزہ ہے کیسے گزرے گا، میں کام کیسے کروں گا۔ بس سحری میں اس لیے کھا رہے ہیں کہ اتنا لمبا روزہ ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھا رہے ہیں کہ اتنے ٹائم سے بھوکا تھا، اور بس وہ سحری کی خریداری، افطار کی خریداری، اسی میں ٹائم گزرے آ رہا ہے۔ آپ نے جیسی ایک کھجور کھائی تو افطار تو آپ کا ہو گیا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ آپ عبادت کی طرف آئیے، عبادت کی طرف آئیے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، زبردست۔ رمضان سے کیسی محبت کرنی ہے؟ رمضان کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے؟ رمضان کا ادب و احترام یہ ہے کہ کسی روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھائے نہ پیے نہ، احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس کس طریقے سے کرنی ہے؟ روزے رکھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور کون سی ایک خاص عبادت ہے جو کی جاتی ہے صرف رمضان شریف میں؟ ایک عبادت ہے جو رمضان شریف میں خاص ہے، رمضان میں ہی کی جاتی ہے، 30 دن تک کی جاتی ہے۔ چلیں آ رہے دن میں بچوں، تراویح کیا؟ تراویح جی ہاں، تراویح جو ہے پورے سال میں ایک ہی دفعہ ہے، اور ماہ رمضان میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں رمضان میں مکہ دیکھنا نصیب فرمائے، رمضان میں مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، زبردست۔ پتہ نہیں ہمیں آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، بس اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں یہ مبارک مہینے کے اندر ہم سے عبادت کروا لے، اچھی عبادت کریں، نیک کریں، زبردست زبردست۔ اور ہماری بھائیوں سے التجا ہے، اور ایک غریبوں کے لیے ایک اسٹال لگا دیں کہ بھائی جیسے گوشت 1000 روپے ہے تو 600 روپے، چینی 150 روپے ہے تو 100 روپے، سفید پوش لوگ، تاکہ سفید پوش یہ تو سوچیں گے کہ چلو ہم پیسے دے کے خرید رہے ہیں، وہ شرمندگی محسوس نہیں کریں گے۔ اگر وہ انہیں پیسے دے کے بدلا ایسا اگر کوئی دینے جائے گا تو شرمندگی محسوس کرے یہ گا۔ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ سفید پوش لوگوں کی اس طرح مدد کریں کہ ان کو جو ہے سستا گوشت دلا دیں، ان کو جو ہے اگر راشن پیسے نہیں ہو، دے کے خریدیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں بھائی ہم پیسوں سے خرید رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ اگر وہ مطلب اگر کوئی ایسے دینے جائے گا تو وہ کہے گا نہیں بھائی مہربانی تمہاری، زبردست زبردست زبردست۔ تو اگر یہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی 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 جی۔ اور اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو اس طرح ہے، سیدھے ہاتھ کو دیں، الٹے ہاتھ کو خبر الٹا نہیں حال تو ہو، بتانا چاہیے، دوبارہ اس سے ایسے ملیں کہ جیسے کہ میں نے تو دیا ہی میں نہیں نے ہے، کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کوئی ہے۔ تو یہ کہ بہت سارے انداز ہیں دینے کے، بس دینے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک رکھے، محبت پیدا کرے، اور اسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بھائی کو دیں۔ اللہ جزائے خیر دے مدنی چینل والوں کو، جو وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے جو ہے وہ تھوڑا سہارا بنے، اور باقی جو ہے وہ ڈونیشن کے حوالے سے ان کے بہت کافی اخراجات ہیں، ان کے بے شمار شعبہ جات ہیں، جن میں جو ہماری اپنا صدقات، زکوٰۃ، عطیات ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں تمام بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہی گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا جائے، اور ان کے جو ہے نا کام میں اپنا تعاون کیا جائے، اور بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور یہ ہے کہ جو باقی لوگ جو ہے دین سے دور ہے
वो भी करीब आ जाएंगे। सही है ना? तो भाई इंशाल्लाह जो है वो सारे भाइयों से मैं यही इल्तिजा करूँगा कि आप आओ और मदनी चैनल के ज़रिए अपनी इस्लाह करो, और अपनी इस्लाह के साथ साथ तमाम उम्मत की इस्लाह की कोशिश करनी है। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये बात मैं आपको अर्ज करता चलूं, रमजान मुबारक बरकत वाला महीना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम आलिम रिदवान को खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया करते थे कि तुम्हारे पास रमजान का महीना आया है जो निहायत बाबरकत है। अल्लाह पाक ने तुम पर इसके रोजे फर्ज फरमाए, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, नीज शैतानों को बांध दिया जाता है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो इसके खैर से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। तो रमजान शरीफ माशाल्लाह जगमगा रहा है, दिन में भी बरकत है, रात में भी बरकत है। हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत हो रही है, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत हो रही है। बदनसीब है वो शख्स जो इसको भी जो है वो ऐसे ही गुजार रहा है आम दिनों की तरह। तो रमजान की कदर कीजिए, इंशाअल्लाह बख्शिश के रहमत के परवाने जारी होंगे। रमजान का भी एहतराम करना है, रोजेदार का भी एहतराम करना है। बिल्कुल बेशक, ऐसा ही बाद लोग रमजान के महीने में खूब धुरम चौकड़ी मचा रहे हैं, उधम चौकड़ी मचाई हुई है। ऐसे ही होता है। हम भी देखते हैं, हम दुकानों के ऊपर देखते हैं ना, तो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, खाना पीने की अशिया जो है ना वो भी लेके आ रहे होते हैं। तो इसका एहतराम करें, रमजान का महीना है, खुद भी एहतराम करें और सामने वाले का भी करें। जबरदस्त जबरदस्त। गरीबों का किस तरह ख्याल रखना है? गरीबों का ऐसा ख्याल रखना है, किसी को दिखलावा नहीं करना। अगर आप किसी मुस्तहिक की मदद करते हैं तो उसको ऐसे मदद करें जैसे उल्टे हाथ को भी पता ना चले। जबरदस्त, दिखावा करके नहीं देना है, दिखावा करके नहीं देना। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। अच्छा, रमजान शरीफ माशाल्लाह, रमजान शरीफ का दो एहतराम कैसे करना है? लोग किन किन कामों में लग रहे हैं भाई? एहसास से, माइक पकड़ लें। एहसास से एहसास करना है लोगों का। बिल्कुल। तो रोजे का उसमें तकवा और तारत बता ही रहा है कि आपको एहसास करना है। बाद दफा तो यूं देखने में आता है कि भाई कि यूं माहौल बना हुआ है कि शहरी में आपका दस्तरखान बिछा हुआ है, सजा हुआ है, इफ्तार में सजा हुआ है। बाद दफा इतना सारा बच जाता है कि जितने लोग घर में अगर 5 अफराद हैं, 5 अफराद और खा सकते हैं, लेकिन वो फिर वो जाया हो रहा होता है, बेरुमती बेतौकीरी है। और फिर वक्त था, यही वक्त था कि आप नमाज मगरिब से पहले पहले उनके घर में इफ्तार पहुंचा देते, और अंदाजा हो रहा होता है, देखकर बड़ों को भी अंदाजा हो रहा था कि ज्यादा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा खाया है, जाएगा। ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन ये भरने का क्या शौक हो गया है? भरना चाहिए। वजह यही ना कि हम लोगों में एहसास नहीं है। ये जगह जगह पर लोग जो है माशाल्लाह इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। तो कैसा लगता है मंजर? बड़ा खूब अच्छा मंजर होता है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई सवाल पूछ, ठीक है, हो सकता है जवाब दुरुस्त हो जाए। कुरान पाक में वो कौन सी सूरत है जो एक गाय के नाम पर है? मैं आपको इशारे भी दे सकता हूँ। सूरह फील, सूरह अनकबूत या सूरह बकरा? गाय के नाम पर है। सूरह फील। सूरह फील। ये नाम मुझे मालूम नहीं है सही से, अरबी के अंदर ये नाम है, वैसे गाय का नाम मेरे ख्याल से फील के अंदर ही है कुछ। फील जी, बकरा। बकरा। चले मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। सबसे पहले छींक किसको आई? छींक समझते हैं? छींक कैसे आती है? छींक अच्छी छींक ऐसे छींक आ जाती है। सबसे पहले किसको छींक आई? अभी तो आपको आई है। तो फिलहाल तो मुझे ही आई है। फिलहाल तो आपका है। आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मजा आ रहा है आपका। सर ये आपका ज़र्फ है, अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाया, रमजान मदीना दिखाया। जी, सबसे पहले किसको छींक आई? मैं आपको 3 इशारे दे रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इन 3 में से एक है सही। ऑप्शन 1 कौन? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। आप आइए भाई, करीब तो आ जाए। आप आए भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर क्यों नहीं आ रहा है? इधर खड़े रहना है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी, सबसे पहले छींक किसको आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी, सबसे पहले छींक आई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। किसको छींक आई है? आदम अलैहिस्सलाम को। तो इसलिए जब हमें छींक आए तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाने काबा के जब उम्रा करते हैं तो कितने फेरे लगाने चाहिए खाने काबा? 7। जबरदस्त। सफा मरवा के दरमियान कितने फेरे? 7 फेरे। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात बताया आपने। जबरदस्त, जवाब दुरुस्त हो गया। चलें जी, जिससे पूछा आएगा वही बताएगा। ये बताइए, ये किस जगह की तस्वीर है? जी जी नादरीन, आपको भी ये नजर आ रही है? नाम मेरे समझ में नहीं आ रहा।
नाम ज़हन में नहीं आ रहा, फिर क्या ज़हन में आ रहा है? कहाँ पर है? मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा में किस जगह है? मक्का मुकर्रमा तो शहर है, बहुत बड़ा शहर है। नहीं नहीं, काबा के अंदर। काबे के अंदर है? जी जी। सोच लें, काबे के अंदर। काबा जिस जगह उसके साथ। देख, काबा, अभी आप काबे के अंदर है। नहीं नहीं, काबे के अंदर नहीं, काबे जिस जगह आप कंफ्यूज मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा ज़हन में जोड़ डालें, आ जाएगा। है खाने काबा में। खाने काबा में है? हाँ, जहाँ तो मुझे याद आ रहा खाने काबा में है। इस तरीके से पूछ रहे आप बताएं, आपने कहा मक्का मुकर्रमा शहर है जी, खाने काबा है खाने काबा जी, खाने का ये मकाम इब्राहिम है। ठीक है, ये मकाम इब्राहिम है। खाने काबा की किस तरफ है? ये खाने काबा के बिल्कुल सामने, करीब ही है जी करीब, बिल्कुल साथ ही है। इसके अंदर क्या है? ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक है। एक पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, बताइए ये पिक्चर किस जगह की है, ये कहाँ पर है? खाना काबा के इतराफ के अंदर है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक। इसको क्या कहते हैं जवाब? नाम याद है, थोड़ा ज़हन पे जोर डालो। आपने जगह तो सही बता दी है, खाने काबा के करीब है। जी जी। ये नाज़रीन आपको नजर आ रही है पिक्चर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आता है उसमें, उस नाम के अंदर जी। इसको कहते हैं मकाम इब्राहिम। अब आ गया ध्यान में, अलैहिस्सलाम। अब नहीं भूलना है। अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तामीर करते थे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस पे कदम मुबारक। हाँ, ये जवाब होगा। तो, अच्छा, कदम मुबारक हैं, जी, ये कदम मुबारक है, निशान आता है, निशान है कदम जी। हाँ, मुबारक। जिस पत्थर पे आप अला नबीना अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, तो आपके पाँव मुबारक जो है उस पत्थर पर नक्श हो गए, तो आज भी वो जियारत कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें मकाम इब्राहिम की जियारत नसीब फरमाए। अच्छा, ये बताइए ये मकाम कौन सा है? मकाम इब्राहिम। जबरदस्त जबरदस्त, मकाम इब्राहिम की लग रहा है जियारत की है आपने, हाजिर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल के जी जी, क्या 4 दफा जाके। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बार बार जाना नसीब फरमाए। मकाम इब्राहिम इसके अंदर क्या है? के अंदर तो नहीं, आपने देखी नहीं? अल्लाह ताला आपको देखना नसीब करे। चले जी, मकाम इब्राहिम के अंदर, जिस तरह नाम से मालूम हो रहा है मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात है पत्थर के ऊपर, और दो आप देखें गोलाई में है। अब तो ये कि घिस गए, तो आप देखें, अगर नाज़रीन आपको भी नजर आ रही है पिक्चर मुबारक, तो इसमें और ये हुआ क्या था कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है खाने काबा की तामीर कर रहे थे, तो अब ऊपर दीवार ऊपर हुई, तो ऊपर की जानिब जाना था, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपने कहा कि बेटा लेकर आइए कोई पत्थर वगैरह कोई ऐसी चीज। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो आगे की जानिब बढ़े, जबल अबू कुबैस जो खाने काबा के करीब पहाड़ है, तो वहां पर 2 पत्थर मिले आपको, एक हजर अस्वद और एक मकाम इब्राहिम, जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। इस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर शुरू फरमाई। अगर आपको ऊपर जाना होता, ऊपर जाने की जरूरत होती तामीर के दौरान, तो ये पत्थर मुबारक अल्लाह पाक के हुक्म से ऊपर हो जाता। जब नीचे आना होता तो नहीं जाना। अभी तो हमारी ये सीढ़ियां है ना, सीढ़ी लगाते हैं ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये पत्थर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मिला था। तो 2 पत्थर थे, एक हजर अस्वद और एक मकाम इब्राहिम। तो हजर अस्वद तो खाने काबा के में लगा दिया, ये तो हम देखते हैं हजर अस्वद, और मकाम इब्राहिम ये बिल्कुल खाने काबा के करीब है, और एक गोल्डन सा एक कुब्बा टाइप का एक बना हुआ है, उसके अंदर ये पत्थर मुबारक रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला आपको और हमें इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात कहना चाहते हैं रमजान शरीफ के हवाले से? भाई रमजान शरीफ बहुत मुबारक महीना पूरे साल में। जबरदस्त जबरदस्त। आप लोग सब बैठे हुए, जल्दी से बताइए ये तस्वीर किस जगह की है? ठीक, और से देखें तो फिर जोश में बोलते हैं सही तरह। मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम में क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है वो पाँव मुबारक है। पाँव मुबारक है? हाँ, पाँव मुबारक है? नहीं, नक्श है, मतलब उनका पाँव मुबारक के नक्श है, वो पत्थर पे नक्श है। जबरदस्त। अल्लाह पाक बार बार जाना नसीब करे, मक्के की सहरियां नसीब फरमाए, मदीने की इफ्तारियां नसीब फरमाए। हमारे यहाँ जो एक चीज बहुत आम है, गलत फहमियाँ हमारे यहाँ जो है वो बड़ी हुई है, और बदशुगुनी भी ले रहे हैं। और जिसमें से ये गलत फहमी है, अगर कोई जा रहा हो तो पीछे से आवाज दे दें, तो बोलता है पीछे से आवाज दे दी अब काम खराब हो जाएगा। तो ये कहाँ तक किया है भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा खराब नहीं होता। मार्केट में है ये बात? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुनिए लोगों से। जी जी क्या बोल रहे सुनिए हैं? भाई, ये अगर बिलफर्ज में अगर कहीं काम से जा रहा हूँ, अगर किसी ने बैग से आवाज लगा दी, ठीक है, तो मैंने बोला अल्लाह अकबर, ये आवाज लगा दिया, मेरा दिन खराब हो गया। तो ये बात है मार्केट में, ये नहीं होनी चाहिए।
یہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है. हम लोग इतने गुमराही के ऊपर हैं कि हम जरा सी चीज के ऊपर, एक कुत्ता बिल्ली भी गुजर जाए तो हमें डर लग जाता है कि यार अल्लाह को भूल के कुत्ते पे आए थे, इस कुत्ते से हमें नुकसान हो जाएगा, इस बिल्ली से हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम अल्लाह उसके रसूल से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बेशक ऐसा इस ही है. वजह से नुकसान हो जाएगा, इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, रोजे नहीं रख रहे हैं, ये इस कुछ तरफ ध्यान नहीं भी जा है रहा ना, है. गुमराही की तरफ चले गए हम. जब इल्म नहीं है. इल्म नहीं है, क्योंकि हमने बुजुर्गों से इल्म लेना छोड़ दिया, अदब करना छोड़ दिया, तो इल्म मिलना शुरू खत्म हो गया. जबरदस्त जबरदस्त. हम बुजुर्गान दिन की सोबत में बैठते ही नहीं. माशाल्लाह एक बुजुर्गों की महफिल एक जमी हुई है. अच्छा एक बात, हम एक गलत फहमी लेकर आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. हमारा प्रोग्राम है रमजान और हम. अच्छा आप लोगों ने बात शायद सुनी होगी कि अगर कोई जा रहा हो अहम काम के लिए तो पीछे से आवाज नहीं देना चाहिए. ये बात सुनी है आप लोगों ने? सही बात है, कोई किसी काम से जा रहा हो तो हमें क्या पता वो किस काम से जा रहा हो. अगर उसको आवाज दे दी ना तो उसका काम खराब हो जाएगा. नहीं, काम खराब नहीं होगा, लेकिन हमें क्या पता वो किस इमरजेंसी में जा रहा हो, घर में कोई बीमार नहीं, है. घर से ही जा रहा है, घर से ही जा रहा है, बस पीछे से आवाज ना दो. आवाज ना दो. लेकिन ये बात है होता है. लोग को वो है, बस उसके ऊपर तवक्कल नहीं करते हैं ना अल्लाह के ऊपर, तो बातें करते हैं, नहीं तो ऐसा कोई मसला नहीं है. तो भाई ऐसा कुछ भी मसला नहीं है. अगर आप काम से जा रहे हैं और आपको पीछे से कोई आवाज दे दे, सुने बात सुने तो आप उसकी बात सुन लें और वो काम जिस काम से आप जा रहे थे, अहम काम से, वो काम करें. इंशाअल्लाह ताला वो काम अच्छा ही होगा. अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए. ये जो है ना ये गलत है. लेकिन इससे लोग ना बदशुगुनी ले रहे हैं कि अगर कोई जा रहा है आवाज दे दोगे अब काम खराब हो जाएगा. वो अपनी ईमान की कमजोरी कर रही है. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. सही है ना, मालूमात नहीं है, उसको मालूमात नहीं इस चीज की. ये बात है ही नहीं, ये बात होनी ही नहीं चाहिए. तो ये हमेशा याद रखें कि जो लोग इसको कहते हैं बदशुगुनी, क्योंकि अब मैंने ये काम हो गया मेरे साथ, अब कुछ ना कुछ गलत होना है. तो याद रखें इस्लाम का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है और आप जिस अहम काम से जा रहे थे उस काम की तरफ बढ़ जाइए. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशुगुनी लेने वालों से अपनी बेदारी का इजहार इन अल्फाज में फरमाया है. ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसने बदशुगुनी ली और जिसके लिए बदशुगुनी ली गई वो हम में से नहीं, यानी हमारे तरीके पर नहीं. और जो बदशुगुनी ले रहे हैं कि अब मुझे आवाज दे दी अब काम खराब होना ही होना है. ये था हमारा आज का प्रोग्राम रमजान और हम. आज भी हमने कुछ गुफ्तगू की, तो ये है कि प्रोग्राम आप लोग देख रहे होंगे तो प्रोग्राम दिखाना भी है, देखना भी है और इसी बरकतें हासिल करनी है. अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए. आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कोई हो मनसब कोई नाम हो, दुनिया में आता है रमजान जिस दम, मिलती खुशी सबको रमजान और हम रमजान.